The northeastern part, the northeastern states of our country needs to be developed at an equal pace compared to the rest of the country. And each ministers being guided, being instructed that we must go and visit and not only review the developmental projects under our ministry, even the other various schemes has been run by the government of India, that also needs to be reviewed. With the same intention, I come here today because this was a matter of concern for me also. When I took over as the Minister for Food Processing Industries, a couple of months ago, almost 9 months back, so when I took over the charge, so this was one of the prime concerns because mega food parks were a great initiative that was started by the ministry. But then unfortunately at few places, we saw this project not taking up the way it should have. And then the one in Arunachal, when we had a review in the ministry, so we came to know about a couple of concerns regarding the land use, regarding, of course the pandemic was one of the concerns because when it was sanctioned, I think it was in 2019, right? In 2019, it was sanctioned. Immediately after that, we had pandemic. So definitely that was one of the concerns. But then besides that, there were many other concerns that were shared by the ministry. So I wanted to come here by myself to really understand that what's not going right and how can we resolve those issues, those challenges. This is the reason why I am here. Having said that, I do genuinely believe that through food processing, I think this is one sector where we can really speed up the process of development by supporting the farmers, by giving them an opportunity. I generally believe that the concern of the central government also has been, this sector has been one of the priorities for the central government also, is the reason why at the central level, and I've requested many state governments also, that why do we have a separate department for food processing at the central level? Because eventually we want to present our country as a global food basket, and we are capable of doing that. We have that potential with us. We can present ourselves as a global food basket, but then for that, every state of our country needs to excel at that level, and through food processing sector we can do that. India is an agro-based country. कई राज्य हमारे ऐसे हैं जहाँ पे कृषि एक बहुत बड़ा राजस्व का रेवेन्यू जनरेशन का साधन है. So हम लोग में वो क्षमता है that we can do this. It's just we need to channelize it, and we can channelize this through food processing. जिन राज्यों में जिस भी चीज का उत्पादन ज्यादा होता है, कैसे उसको बढ़िया से उसकी प्रोसेसिंग करके, पैकेजिंग करके, मार्केटिंग करके, डिजिटली उसकी मार्केटिंग हो, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से उसकी मार्केटिंग करके, रिटेल में उसकी कैसे मार्केटिंग करके उसको हम लोग देश के कोने कोने तक पहुंचा सके, और न सिर्फ नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनली भी हम लोग ग्लोबल मार्केट्स को पेनिट्रेट कर सकते हैं थ्रू प्रोसेस फूड. Eventually, this is the dream of my Prime Minister, this is my dream too, that eventually I want to see a day where दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर कम से कम एक भारतीय डिश होनी चाहिए, एक भारतीय व्यंजन होना चाहिए. अब वो चटनी के रूप में हो, अचार के रूप में हो, पापड़ के रूप में हो, कोई डेलिकेसी के रूप में हो, ये होना चाहिए और ये संभव है, हम लोग कर सकते हैं. मेगा फूड पार्क्स उस सोच की नींव को मजबूत करने की दिशा में एक सशक्त कदम है. कहां पे इसमें कमियां आ रही, मेरा मंत्रालय हम लोग प्रयास कर रहे हैं उन कमियों को दूर करने का. आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ इसी उद्देश्य के साथ आया, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कहाँ पे चीजें फंस गई हैं. राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मेरे प्रधानमंत्री बोलते हैं जब डबल इंजन की सरकार हो तो सहूलियत और बढ़ती है, और ये हकीकत भी है. इसको कई बार हम लोगों ने अनुभव किया है जब केंद्र और राज्य के स्तर पर फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश का, भारत का संविधान, संघीय ढांचा,
की अनुमति हमारे देश को देता है, जहाँ पे केंद्र की सरकार, राज्य सरकार दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करती है। बट जब दोनों सरकारें एक सोच की होती हैं तो चीजें आसान होती है। केंद्र सरकार की परियोजना राज्य सरकार पारित करती है, राज्य सरकार की योजना केंद्र सरकार पारित करती है, वो एक सुविधा बन जाती है। ऐसे में मैं मानता हूं कि आज के इस विजिट के बाद जहां जहां पे भी इस मेगा फूड पार्क को लेकर जहां पे भी कंसर्न्स है, चैलेंजेस है, उसको आने वाले दिनों में हम लोग मिलकर जल्द हम लोग रिजॉल्व करेंगे। सेक्रेटरी मैम यहाँ पे मौजूद है, कमिश्नर साहब यहाँ पे मौजूद है। मैं मानता हूँ कि जहाँ जहाँ पे स्टेट लेवल में भी जो कंसर्न्स आ रहे हैं और मॉफपी की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें आपस में तालमेल बैठाकर जहाँ पे भी बॉटलनेक्स आ रहे हैं उसको जल्द हम लोग रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये जानकारी मुझे दी गई है कि यहाँ के किसान भी इस मेगा फूड पार्क को लेके काफी उत्साहित हैं। लंबे समय से उन्होंने भी अपने प्रोडक्शन को बैकवर्ड लिंकेजेस के माध्यम के थ्रू उन्होंने अपने प्रोडक्शन को भी वो दिशा देना शुरू किया है। जल्द से जल्द किसानों को भी उसका लाभ मिले, अंतोगतवा लक्ष्य हम सबका वही है। जब भारत के अन्नदाता, भारत के किसान सशक्त होंगे, मजबूत होंगे तो स्वाभाविक है वो राज्य भी मजबूत होगा। और ऐसे में प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा अहम रोल आता है, न सिर्फ किसानों की आमदनी को मजबूत करने को लेकर बल्कि उस राज्य में जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी क्रिएट करता है। जिस दिन ये मेगा फूड पार्क सुचारू रूप से चलने लगेगा, स्थानीय ग्रामीणों को, लोकल लोगों को भी यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। राज्य का यकीनन राजस्व बढ़ेगा, रेवेन्यू जनरेशन भी होगा। इस दिशा में कैसे अब हम लोग इसको गति दे सके, आज इस बैठक से मुझे लगता है काफी क्लैरिटी आई। थैंक यू फॉर अ वेरी क्लियर प्रेजेंटेशन ऑल्सो। आप लोगों ने इसको प्रिंटेड हार्ड कॉपी के रूप में भी दिया है, सो दैट मेक्स इट ऑल द वे मोर इजियर फॉर मी टू गो बैक एंड रेफर टू द कंसर्न पॉइंट्स। मैं बस ये विश्वास दिला के जाना चाहता हूँ कि मैं उस सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का। भारत विकसित देश तब बनेगा जब भारत का हर एक राज्य विकसित बनेगा, और खास तौर पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, विदाउट गेटिंग पॉलिटिक्स इनटू इट, बट देन पूर्वोत्तर के ये राज्य ऐसे राज्य रहे हैं जिनको लंबे समय तक इग्नोर किया गया। मुझे खुशी इस बात की है कि जब मेरे प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों को प्राथमिकता देने के लिए न सिर्फ बातें कही बल्कि उन्होंने सशक्त कदम उठाए, अलग एक मंत्रालय का गठन किया, मंत्रियों के ऊपर जिम्मेदारी, खासतौर पर सीमावर्ती राज्य ऐसे जिनके गांवों को पूरी तरीके से इग्नोर किया जाता था। सीमा पर जो गांव जुड़ते हैं उनको पूरी तरीके से इग्नोर किया जाता था। कैसे एक छोटा सा शब्द आपकी पूरी सोच को बदल देता है। अभी तक ग्रोइंग अप ईयर्स में सीमावर्ती इलाकों में जितने गांव होते थे हम लोग उनको अंतिम गांव मानते थे। प्रधानमंत्री जी की ये खूबसूरत सोच कि वो हमारे देश के अंतिम गांव नहीं, वो हमारे देश का पहला गांव है, उसने उस मानसिकता को ही बदल दिया। और मैं मानता हूं कि वाइब्रेंट विलेज जिस सोच के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ रही है वो देश के हर एक गांव विकसित करने का काम करेगी। और जब देश का हर एक गांव विकसित होगा तभी 2047 2047 पहुंचते तक भारत एक विकसित देश बनेगा। और मैं मानता हूं कि उसमें हर एक सेक्टर की एक अहम भूमिका, और खास तौर पर मेरे मंत्रालय की मैं मानता हूं कि बहुत अहम भूमिका है। कृषि प्रधान देश होने के नाते आज की तारीख में तकलीफ हम लोग को होती है जब हम लोग फूड वेस्टेज देखते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस देखते हैं। मुझे लगता है ये एक माध्यम है जिसके माध्यम से ना सिर्फ हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि वैल्यू एडिशन करके उस उत्पादन को देश दुनिया के कोने तक लेकर जा सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ मैं कार्य कर रहा हूँ, ये प्रयास कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी मेगा फूड पार्क्स हैं या हमारे मंत्रालय के अलग अलग स्कीम के माध्यम से जो भी यूनिट्स हैं, जो भी बॉटलनेक्स वहाँ पे आ रहे हैं, संभवतः मैं खुद जाऊँ और उन बॉटलनेक्स को मैं क्लियर करने का प्रयास करूं। इसी सोच के साथ आज मैंने खुद साइट विजिट करने का हम लोगों ने फैसला लिया, और आज आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत सही फैसला था। आकर खुद को भी बहुत क्लैरिटी आती है कि कहाँ पे सही में दिक्कतें आ रही। So with a hope and belief that once I go back, we'll be able to resolve all the challenges, we'll be able to clear up
all the bottlenecks and जो manifest आप कर रहे हैं that during my next visit ये working होना चाहिए. I also manifest the same thing that by the time I come back again to Arunachal and I visit this, so it should be working, and I'm sure with the cooperation of the state government and the central intervention, I think we'll be able to fulfill our ambition. We'll be able to reach our target. Thank you so much for having me here. Thank you so much for your warm hospitality. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.